Hello everyone, welcome to all of you in our today's video. Second chapter, from trade to territory, the company establishes power. Next subtopic, the Battle of Palasi. When Alivardi Khan died in 1756, Sirajuddaula became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and gain on a puppet. Puppet means literally a toy that you can move with the strings. The term is used disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else. So, ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So it tried through without success to help one of Sirajuddaulla's rivals become the Nawab. And infuriated, Sirajuddaulla asked the company to stop meddling the political affairs of his dominion, stop fortifications, and pay the revenues. After negotiations failed, the Nawab merged with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleet. Prolonged negotiations with Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaula at Palasi. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Zafar, one of the Sirajuddaulla's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulla. The Battle of Palasi became famous because it was the first major victory the company won in India. After the defeat of Palasi, Sirajuddaula was assassinated and Mir Zafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not also as helpful as the companies wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. So बच्चों, आगे पलासी का युद्ध के बारे में जानकारी है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय भी था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी के ऐसी कठपुतली को नवाब बनाना चाहते थे जो उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाएं को आसानी से देकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। कठपुतली कहने का मतलब है कि ऐसा खिलौना जिसे आप धागों के सहारे नचा सकते हैं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी थे किसी को भी नवाब बना दिया जाए। कंपनी को इस बात पे कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने बल्कि हुक्म दे दिया कंपनी के जो राज्य के राजनीतिक मामले हैं वो उसमें आनाकानी या उसमें अपनी टांग ना अड़ाए। किलेबंदी रोक दिए गए और बाकायदा राजस्व चुकाने को कहा गया। जब दोनों पक्ष पीछे नहीं हट रहे थे तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने काशिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा कर लिया या फिर कब्जा करने को आगे बढ़ा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया।
इस सेना को नौसैनिक बेड़े ने भी मदद की। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक बहुत सौदे होते रहे। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजदौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजदौला की हार एक बहुत बड़ी रूप में सामने आई, क्योंकि इसकी हार जो है उनके ही एक सेनापति मीर जाफर की वजह से हो गई। मीर जाफर को टुकड़ियों में युद्ध में हिस्सा लेना था, जो उन्होंने नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अर्थात उन्होंने यह कह दिया कि सिराजदौला को हटाकर वो मीर जाफर को नवाब बना देंगे, और इस बात के लिए मीर जाफर लोभ में आ गए। पलासी का जंग जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत मानी जाती है। पलासी के जंग के बाद सिराजदौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गए। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना ही था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को ऐसा एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चल सकते हैं। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखाना पड़ता है। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, his stand was defeated in a battle fought at Buxar, 1764, driven out the Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and to meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of company had changed. Having fell to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as a Diwan of Princes of Bengal. The Diwani allotted the company to use the vast revenue resources of Bengal. These solved the major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time, Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumptions of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building and company fort and offices at Calcutta. तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई लड़ लिया, जो 1764 में हुई, जिसमें उनको हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर भी कर दिया गया और फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक ज़रूरतों के लिए या अन्य जो भी खर्च होते थे उनको, वो पैसा चाहती थी उसको कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के बाद कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी।
18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। पलासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाले जो आमदनी था उसके सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी ने भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को की खरीदारी शुरू कर दी। अब फौजों को संभालना भी पड़ता था और वो संभाल भी ले रहे थे। कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा रहे थे। नेक्स्ट सब टॉपिक, कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब्स। What did it mean to be nawabs? It meant, of course, that its company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like nawabs. After the Battle of Palasi, the actual nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102 pound. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruptions in company administrations. But he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called nabobs, an anglicized version of Indian word nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. अंतिम उपविषय है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का मतलब है, इसका अर्थ जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वही कंपनी के पास एक ऐसा सत्ता या ताकत थी जिसके कुछ फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर एक कर्मचारी नवाब की तरह जीने में का ख्वाब देखता था या जीना चाहता था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाब थे उनको इस बात के लिए बाधित कर दिया जाता था कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारे पैसे दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1747 में जब इंग्लैंड से मद्रास वह आया तो उसकी उम्र 18 साल की थी। 1767 में जब वह 2 गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत पौंड में थी, जो कि 401,102 के बराबर थी। यह दिलचस्प बात है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देने को कहा। सरकार को अपनी जो संपत्ति थी उसके स्रोत संदेहास्पद लग रही थी, यानी उस पर उन्हें डाउट थी। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में
उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो खुद के आत्मग्लानि में था। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण भी कम उम्र में ही मौत के लिए ईश्वर के द्वारा आमंत्रण पाए। बहुत सारी बीमारियों की वजह से उन्हें मौत हुई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इनमें से बहुत कुछ अफसर ऐसे जो थे जो साधारण परिवार से ही आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन लौट लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। लेकिन वहाँ के लोग नवाब उसे कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्कार बन गया, यानी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। तो बच्चों, आज हमने अपने हिस्ट्री के बुक के चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर को देखा। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक को देखा और उस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स को भी देखा। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।